Okay, so very good morning, all. Today we'll talk about the themes in the novel Blasphemy by Tahmina Durrani. We'll begin with a common introduction that you should give, I guess. Whatever question comes, कोई भी question है, ये common सा introduction है that you can give. Okay, so let's begin. I'm reading it for you. Tahmina Durrani, born 18th February 1953, is a Pakistani author known for her best selling book, My Feudal Lord. So, if you know, you know, My Feudal Lord is an autobiography. Do not get confused. It is an autobiography, okay? And not blasphemy. Well, an artist and a first lady of Pakistan since 2022. Well, she is a wife of Prime Minister Shehbaz Sharif, hence, she is the first lady of Pakistan. Now, in an interview, उन्होंने कहा है that I am a woman, hence I naturally write from woman point of view. Now, this is really evident. वो एक औरत हैं और इसलिए वो woman point of view को बहुत strongly और बहुत ही boldly अपनी किताबों में दिखाती हैं. Well, these are the lines from the interview. You can write it in your exams as well. Moving forward, Tahmina Durrani's novel Blasphemy was successful but also controversial. Through blasphemy, she tried to depict the picture of suffering of women at a deeper level in her novel. अपने novel के through उन्होंने ये दिखाया कि जो एक woman की position है या condition है वो कितनी ज़्यादा low है in our society. Okay. All the episodes of the novel spoke only about the attitude of men towards women. ओके पूरे नॉवल में उन्होंने बस यही दिखाया है कि एक मैनली एटीट्यूड जो होता है वो वुमेन के टुवर्ड्स कैसा होता है. उन्होंने अपने नॉवल के थ्रू एक जो रिलीजियस डॉगमास है या जो पैट्रियार्की है कहीं ना कहीं उसको चैलेंज किया है या उसको कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में दिखाया है. सो ये ओके सो लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ पैट्रियार्की. सो आई एम रीडिंग द लाइन्स फॉर यू. No matter what social status a woman assumes in society, her voice is suppressed, and being a subaltern, she cannot speak. The peasant who assumes the position of a local god has both the powers. He is rich and powerful, and is also the male member of the society. Well, this is like a cherry on the top for him. You know कि वो powerful तो है ही, plus वो male member भी हैं society के. Hence he got that power to overrule the people. पेट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता जहाँ पे आदमियों की चलती है औरतों की नहीं. और नो मैटर आप सोसाइटी में क्या पोजीशन रखते हैं, अगर आप एक औरत है तो आप हमेशा एक आदमी के नीचे ही आएंगी. ये बोला जाता है, ये माना जाता है हमारे सोसाइटी में. और ये चीज़ जो है नोवेल में बहुत अच्छे से दिखाई गई है. पीर सेन हु इज़ अ मेल मेंबर, वो कितनी भी बुरी चीज़ें करे, ही इज़ एन ईविल कैरेक्टर, ही इज़ अ डेविल, ओके, बट उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ अ मैन. इवन अम्मा सेन जो कि उनकी माँ होती हैं, उनसे भी बड़ी होती हैं, वो भी क्वेश्चन नहीं कर सकती अपने बेटे को. वाई? बिकॉज ही इज़ अ मैन अलॉन्ग विद लॉट ऑफ पावर एंड मनी. ओके, नेक्स्ट इज फीमेल सब्जुकेशन, यानी कि महिला अधीनता, यानी कि औरतों को अपने अंदर रखना, नीचे रखना, उनको सब्जुकेट या दबा के रखना. सो दिस इज़ वेरी एविडेंट और ये बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है इन द नॉवल थ्रू द कैरेक्टर हीर. ओके, let me read it for you. Here is an ideal character to show subjugation of women throughout the novel. She tries in a vain to raise her voice or to make difference, but every time she is clutched back by the shackles of patriarchy. नॉवल में हीर इसकी जीती जाती एग्जाम्पल है. उसने बहुत बड़ी कोशिश की कि वो इस दलदल से बाहर आ पाए या वो कहीं ना कहीं अपनी वॉइस रेज कर पाए अगेंस्ट पीर सेन, बट इट वॉजंट पॉसिबल एट ऑल. जितनी बारी उसने कोशिश की हर बार उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, कभी पीर सेन से और कभी उसके खुद के बेटे से. एंड सिर्फ पावरफुल लोगों ही नहीं, इवन जो विक्टिम रहे हैं उन्होंने भी यही सजेशन दी कि आप अपना मुंह बंद रखो बिकॉज देर इज़ नो बेनिफिट. देर इज़ दिस लाइन दैट आई वॉन्ट टू कोट. अम्मा, when there is no होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, when there is no choice it is better to do nothing, let it be as it is, however it is. ये गप्पी कहती है अपनी मम्मी से कि माँ जैसा हो रहा है वैसा होने दो, बिकॉज जब आपके पास कोई चॉइस नहीं हो तो इट्स बेटर टू बी क्वाइट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स. सो थ्रू आउट द नॉवल वी हैव सीन दैट पीर सेन is overindulged in all these sexual activities, and not only his wife, the maid servants and the minors, but उसने अपनी खुद की बेटी तक को नहीं छोड़ा. And he says, Peer Sen spoke but only of sex, planning the next act,
discussing the last one, seeking opinions of a new one, comparing it to another one until the matter took up my entire life. Okay, so moving forward, the next point is hypocrisy, which means पाखंड. पाखंड तो भरा पड़ा है इस नॉवल में भाई. पीर सेन इज़ द कैरेक्टर जो बहुत ही बड़ा पाखंडी है, जो ग्रीन चद्दर ओढ़ के रखता है जिसपे कि 99 टाइम्स नेम लिखा हुआ है अल्लाह का. बट ही इज़ एक्चुअली अ रिलीजियस इम्पोस्टर, अ सेक्सुअल लीचर. एंड तहमीना ने अपने नॉवल में तंज कसा है, या कह सकते हैं क्रिटिसाइज़ किया है इस टाइप के रिलीजियस लीडर्स को. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो डार्क सीक्रेट्स हैं जो कॉमन मासेस से छुपे हुए हैं रिलीजियस लीडर्स के, वो इस नॉवल के थ्रू बाहर आई. ही यूज टू एक्सप्लॉइट वीक, रेप माइनर्स एंड वॉट नॉट. He was misusing the name of Islam and Islamic teachings. Okay, so up next we have is this domestic violence. And again, I would say this is very evident and can be seen throughout the novel. Because जब हीर की शादी होती है on the very first night, वहीं से जो है वो कहीं ना कहीं एक physical violence start हो जाती है. And it turns into verbal and psychological violence as well. I'm so sorry. She is beaten through all means of torture. उसको हर तरफ से टॉर्चर किया जाता है भाई, no matter what. And why just here? बल्कि उस पूरे हवेली में जितनी वुमेन होती हैं, and not just women but men